Dear students, and welcome back again in our this session. I'm very happy with your immense support. I hope that I have explained the lessons and you have understood very well. Now today I will start an amazing story and a great entertainment in the story form in the Kingdom of Fools, written by A.K. Ramanujan, who is an Indian writer as well as a scholar of Indian literature. He wrote not only in English but also in his own original language, Kannada. In this story, he had added a great humor, and at the same time, the story conveys a very strong, powerful message and a thought-provoking message that you have to look at. So let's begin an amazing, great Indian story that will make you laugh and at the same time will give you a strong message also. Okay? Before beginning the story, I want to ask you a very simple question. The question is, how important is the role of guru, mentor, or a guide or a teacher in your life? He is very important, I know, but I need your replies in your own words in the comment box. As soon as the class or the session gets completed, I'm going to see your replies. Okay? So let's begin the story. It's very interesting. At the same time, it gives you humor. It makes you laugh also. The story, the name, the title suggests that there are many fools in the kingdom, and at the same time, the king will also be a fool. How he control or manage his kingdom, how he function or administrating the kingdom. Let's begin and let's find out the answer to this question. Okay? So let's start the story, The Kingdom of Fools, an amazing humorous tale written by A.K. Ramanujan. This story is very popular Kannada folk tale which deals with the consequences of being greedy. And this story written by A.K. Ramanujan, who was a great scholar and a story writer, and at the same time many qualities are there in his personality. He wrote not only in English but also in Kannada. He was a poet, scholar, author, philologist, folklorist, translator and playwright, all rolled into one. As a career option, he became a lecturer in English first in India, then at various universities in the US, including Harvard. So, now in this story, let's start what he had written in this tale. So, as the name suggests you that there are many fools in the kingdom. So, of course, the king will also be a fool. उस देश का राजा खुद भी बहुत ही मूर्ख राजा था और साथ ही उनके जो मिनिस्टर्स है, कर्टियर्स है, वो भी उनके साथ उनकी ही बातें मानते थे, तो मूर्खता का ही उदाहरण पेश करते थे. So both the king and his ministers were fool. What they did? Something different thing every day. They are proving themselves as fool or foolish. Okay? So एक दिन जब ये ऐसे अलग अलग तरह के नियम बनाते रहते हैं और उनके मिनिस्टर्स उन नियमों को कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छे नियम हैं, कुछ इस तरह वो अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करते थे राजा के सामने. और इस तरह हमने देखा कि पूरे किंगडम में सिर्फ बुद्धू या मूर्ख लोगों का ही राज था. एक दिन राजा ने एक समन जारी किया और घोषणा करवाई कि अब आज से हम एक अलग नियम के तहत काम करेंगे. अलग नियम क्या है? जो काम हम सुबह करते हैं अब वो शाम को नहीं, रात को करेंगे. और जो काम हम रात को करते हैं, क्या करते हैं? हम सोते हैं. तो ये सोने वाला काम सुबह करना है और सुबह वाला जो रेगुलर वर्क काम होता है उन्हें हम रात को करेंगे.
राजा ने सोचा कि बाकी राजाओं को हराने का एक बहुत अच्छा तरकीब है और ये अच्छा रास्ता है। कुछ इस तरह उनको कहा गया कि रात को आपको काम करना है और सुबह आपको सोना है। तो इस तरह एक समन जारी करने के माध्यम से लोगों को सुबह के वक्त जब वो काम करना चाहते हैं वो सोने लगे और रात को वो जागकर काम करने लगे। यहाँ तक कि सभी लोग, ये बहुत ही फोर्सफुली किया गया था कि सुबह उनको सोना ही पड़ेगा। So like that, the foolish king changed the natural occurrence. As we do when the sun rises, we start our work, regular work. But here in the story, the whole natural occurrence has completely changed by the foolish king, by the foolish king's rule. Now the people, they had to sleep during the daytime, and at night they have to do the work, their regular work. They have to start their market, everything. So now the animals also cannot sleep at night. They have to do the work in the field and some other work also. So like that, the foolish king made a different rule. Okay? One day, a guru and his disciple were passing the city and arrived in the city. To their astonishment, no one was there in the city, in the market, anywhere. They were sleeping in their house, so they became too much amazed or surprised. वो अचंभित हो गए, सरप्राइज्ड हो गए कि कहाँ गए लोग। सुबह के वक्त हम तो काम करते हैं, पर यहाँ के लोग तो सुबह के वक्त सोते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुए, सोचते रहे, और उसी वक्त बहुत दूर का रास्ता आने की वजह से उनको बहुत भूख लग रही थी। शिष्य को भी बहुत भूख लग रही थी। सो डिसाइपल ने कहा कि हम कहीं खाना खा लेते हैं, पर कहीं पे भी कोई भी दुकान या शॉप या मार्केट खुला न होने के कारण वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने देखा कि सारे लोग अपने अपने घरों में दिन के वक्त, ड्यूरिंग द डे टाइम, everyone is sleeping. They were sleeping and they are not doing any work, but at night time, the people started to work. हम जैसे सुबह के वक्त काम शुरू करते, वो रात होने पर काम शुरू करते हैं। जो सा काम हम सुबह करते हैं उन्होंने शुरू कर दिया रात को काम करना। मार्केट खुल गए, सब कुछ हो गया। तो सेंट या गुरु बहुत सरप्राइज्ड हुए। उन्होंने सोचा ये सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं है, ये सिचुएशन कुछ खतरनाक है, रिस्की है। तो उन्होंने अपने डिसाइपल को कहा कि ये जगह हमारे लिए सही नहीं है, हमें इस जगह को छोड़ के चले जाना चाहिए। लेकिन डिसाइपल was a good lover. He was a good food lover. He got excited with the cheap food items in the kingdom. उस किंगडम में हर चीज़ों के दाम 1 रुपये थे। सिर्फ 1 सिक्के या 1 रुपीज़ कॉइन से हर चीज़ मिल जाती थी। वो बहुत खुश था, और खुश होने से वो सेंट के साथ लौटना नहीं चाहा। उसने रिफ्यूज़ कर दिया। He refused to go and he decided to stay in the city. And after eating lots of food items, he became so fat like a bull. But one day, what happened? In the city square, one theft was done. One boy, for his brother, he made a complaint to the king. He said that his brother was pursuing a theft. चोरी करते हैं वो, burglary करते हैं वो। He said that his brother was pursuing an ancient trade. एक बहुत ही पुराना काम कर रहे थे। हमारा ये परंपरा है चोरी करना, और चोरी करते हुए एक रिच मर्चेंट के घर की दीवार जो उनके सर पे गिर जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उन्हें जस्टिस चाहिए। यहाँ एक चोर का भाई आकर कहता है कि उन्हें जस्टिस चाहिए। तो इस तरह इस स्टोरी में सब कुछ उल्टा होता है। जस्ट द ऑपोजिट, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। द किंग he is listening the story of a thief's brother. एक चोर के भाई की कहानी वो सुनते हैं कि एक चोर चोरी करने गया था, और वहाँ पे वो चोरी करते वक्त, जो कि उसका एंशिएंट ट्रेड है, उस वक्त उनकी वाल की वजह से, वीक वाल, जो कि रिच मर्चेंट के घर की वाल बहुत वीक होने की वजह से वो चोर की मृत्यु हो जाती है, और वो चोर उसी घर में दीवार के नीचे मर जाता है।
और इस वजह से उसके भाई को जस्टिस चाहिए, है ना? बहुत अजीब सी। Now the king was listening to the thief's brothers' talkings, his complaint, his very foolish complaint. राजा भाई की सारी बातें सुन रहा था। ये कह रहा था कि उसने चोरी की है, उसकी मृत्यु हो गई है और इसके लिए उसे जस्टिस चाहिए। लेकिन ये तो बहुत अजीब सी बात है। Now the king, he was also a fool. He has no brain. He had no idea about the act of theft or burglary. जिसे चोरी कहते हैं उसे हम burglary या theft कहते हैं। तो what did he do? He is a fool, right? The king summoned the owner of the well, the rich merchant. The rich merchant arrived in the court और उन्होंने अपनी सफाई दी कि ये दोष मेरा नहीं है। So the rich merchant pleaded to the king. रिच मर्चेंट ने कहा कि ये दोष मेरा नहीं है, ये ब्रिकलेयर का दोष है। उसने अच्छे से वाल नहीं बनाया, मजबूत तरीके से वाल बनाता तो ये नहीं टूटती, और मैंने उसे बहुत अच्छे से वाल बनाने को कहा था। तो राजा ने ये बात सुनकर अपने सोल्जर्स या मैसेंजर्स को भेजकर ब्रिकलेयर को सभा में बुलाया। ब्रिकलेयर सभा में आने के बाद उसने कहा, ये दोष मेरा भी नहीं है। मेरी ये जो अटेंशन ग्रैब या बहुत परेशान हुआ था उसके पीछे की वजह एक डांसिंग गर्ल है। एक डांसिंग गर्ल अपने एंकलेट या जिसे हम पायल कहते हैं, पायल की आवाज़ करते करते ऊपर नीचे स्टेप्स कर रही थी और इस वजह से मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। डांसिंग गर्ल जो छोटी सी बच्ची थी उस वक्त, आज वो बहुत बड़ी लेडी, एक ओल्ड वुमन बन चुकी है। वो ओल्ड वुमन कहाँ रहती है मुझे पता है, मैं उसे बुला के लाता हूँ। तो किंग ने कुछ और मैसेंजर्स को भेजकर ओल्ड वुमन जो बचपन में एक छोटी सी बच्ची के रूप में उन्होंने इनको परेशान किया था, उन्हें कोर्ट में बुलाया। द ओल्ड लेडी, द ओल्ड वुमन reached or arrived in the court by trembling and she said that no, it's not my fault. उन्होंने ये कहा कि ये मेरा दोष नहीं है, ये तो गोल्ड स्मिथ का दोष है। गोल्ड स्मिथ ने मुझे बहुत देर से, बहुत लेट उन्होंने डिलीवरी दिया मेरे गोल्ड ऑर्नामेंट्स का, इसीलिए मैं उनके पास बार बार जा रही थी। गोल्ड स्मिथ कोर्ट में आकर उन्होंने अपना ही जवाब दिया। उन्होंने कहा ये मेरा दोष नहीं है। ये जो रिच मर्चेंट हैं वो हमारी बात सुनते नहीं हैं, उनको काम पहले चाहिए और पहले करने के चक्कर में मैं लिटिल डांसिंग गर्ल का काम नहीं कर पाया और इस तरह ऑर्नामेंट्स लौटाने में देर हो जाने से लिटिल डांसिंग गर्ल बार बार मेरे पास आती और मुझसे सवाल करती। अब रिच मर्चेंट को सभा में बुलाया गया। रिच मर्चेंट ने कहा ये मेरा दोष नहीं है, ये वाल बनी थी मेरे फादर के वक्त, तो फादर इसका कल्प्रिट है, मैं नहीं, मेरा दोष ये है ही नहीं, यहाँ पे दोष तो मेरे फादर का है। So the rich merchant cried and said, it wasn't me but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent. मैंने कुछ नहीं किया। कुछ इस तरह पूरी कहानी फिर से एक पूरे सर्कल को कंप्लीट करती है। The whole crime or situation received a full circle. First with bricklayer or with the rich merchant, thereafter bricklayer, the dancing little girl now turned to a woman, and thereafter goldsmith, and in the end the again rich merchant. कुछ इस तरह स्टोरी completely फिर से rich merchant तक पहुंच जाती है। So the king consulted his minister and ruled decisively, it's true your father is the true murderer. And rich merchant ने कहा कि ये मेरा दोष नहीं है। तो राजा ने कहा कि तुम्हें इतना कुछ मिला है अपने फादर से, तो ये जो क्राइम है इस क्राइम की भी पनिशमेंट तुम्हें ही मिलेगी। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, दिस हॉरिबल क्राइम, नाउ यू मस्ट डाई। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। तो राजा ने आदेश दिया एक स्टेक बनाने के लिए जिस पर उनको गला उनका कट किया जाएगा। तो जब स्टेक बना तो वो कुछ ज़्यादा बड़ा बन जाने से मिनिस्टर ने कहा कि ये कुछ फिट नहीं हो रहा है, रिच मर्चेंट के लिए ये फिट नहीं। The minister find a man, fat man, to fit the stake. So
the soldiers, the messengers searched for a fat man and they found the sannyasi, the fat man disciple. He said, I am innocent, but they didn't listen to him. And thereafter, disciple thought that now the Guru was right. He thought about Guru in his mind, and through the magical power, Guru understood his disciples' problem. He arrived in the city with his magical power, and both of them made a plan to defeat the king. They made a secret plan that they will make an act before the king. वो किंग के सामने एक एक्टिंग करेंगे, एक इस तरह प्रिटेंड करेंगे कि वो इस स्टेक के सामने वो सबसे पहले मरना चाहते हैं. तो कभी गुरु कहते कि मैं मरूंगा, तो कभी डिसाइपल कहता है कि ये मेरी बारी है. It was me, the first. I want to die. Later on, the Guru also said, no, it's me. I will die. So, इस तरह उनको बहस करते हुए देखकर राजा ने सोचा कोई तो बात है. ये एक दूसरे के साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं कि वो मरना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता. ये दोनों इतना मरने के लिए इतने पागल क्यों हुए जा रहे हैं. तो राजा ने अपने मिनिस्टर से बात की और सोचा कि जरूर कोई बात है. और तभी साधु ने कहा या सेंट या गुरु ने कहा कि इसके कारण ये है कि ये स्टेक नया है, न्यू स्टेक है, और यहाँ इस न्यू स्टेक में जिसकी भी मृत्यु होगी उनका पुनर्जन्म रीबॉर्न होने के बाद वो फिर से किंग ही बनेंगे. ये बात सुनकर राजा और मंत्री सभी बहुत सरप्राइज्ड और परेशान हो गए और उन्होंने ये पनिशमेंट या एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दिया. The saint said that this is the stake of God of justice. It's new. It has never had a criminal on it. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. ये बात राजा के मन में बार बार आने लगी. वो सोचने लगे कि यानी कि मुझे पहले मृत्यु वर्ण करना पड़ेगा, इस स्टेक पर मेरी पहले मृत्यु होगी, तब मैं भी फिर से राजा बन जाऊंगा. ये सोचकर उन्होंने अपने मंत्री या मिनिस्टर से बात की और उन्होंने एक सीक्रेट प्लान किया. He told the executioners, we will send the criminals tonight. When the first man comes to you, put him to death first. Then do the same to the second man. Those are my orders. Don't make any mistake. उन्होंने एग्जीक्यूशनर्स को एक ऑर्डर दिया. उन्होंने राजा ने एग्जीक्यूशनर्स को ऑर्डर दिया था कि जब पहली बार स्टेक पर जिस भी इंसान को ऑर्डर के हिसाब से सर कलम किया जाएगा या स्टेक पर उनको मार दिया जाएगा, उस वक्त कोई गलती मत करना और जैसा होता रहे वैसा होते रहने देना. ये कहकर उन्होंने उसे कहा कि कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. That night the king ordered the executioners and he went to the prison. In the prison with minister, he secretly went and decided to have the disguise of guru and disciple. उन्होंने गुरु और डिसाइपल की ड्रेस पहन लिया और वो बन गए गुरु और डिसाइपल. दिखने में लगे वो गुरु और डिसाइपल की तरह. किसी को भी नहीं पता चला कि जब नेक्स्ट डे स्टेक पर गुरु और डिसाइपल की जगह राजा और मिनिस्टर और राजा किंग और मिनिस्टर को जब सज़ा दी जा रही थी, तब किसी को भी ये नहीं पता चला. और जब उनकी डेड बॉडीज़ को पूरे लोगों ने देखा, गांव के लोगों ने देखा, तो उनको समझ में आया कि आज तो हमारे किंग और मिनिस्टर की मृत्यु हुई है. उनको बहुत परेशानी हुई. वो बहुत परेशान हुए कि अब हमारा क्या होगा. और तभी उन्होंने देखा कि गुरु और डिसाइपल ये शहर छोड़कर जा रहे हैं. और शहर छोड़कर जाते वक्त उन्होंने उनसे निवेदन किया कि हमें ना छोड़कर जाएं. तब उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ रहेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, लेकिन यहाँ के सारे नियम हम बदल देंगे. और उस दिन से उस शहर में सब कुछ ठीक हो गया और राजा और मंत्री के मृत्यु होने के बाद ये डिसाइपल और गुरु आज़ाद हो गए. उनको रिलीज़ कर दिया गया और वो बन गए उस देश के राजा और मंत्री. कुछ इस तरह स्टोरी खत्म होती है और ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है. ये लालच करना बुरी बला है, हमने बहुत बार सुना है, लेकिन इस कहानी ने इस बात को प्रूफ किया है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए. लालच हमारी ज़िंदगी में सिर्फ मुश्किलें लेके आते हैं. तो आप भी इस स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा है, आगे भी आप इसका ध्यान रखें.
सो गुड बाय टुडे और फीडबैक देना कभी ना भूलें। और आशा करती हूँ ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छी स्टोरी के साथ साथ ये हमें बहुत कुछ सिखाती भी है। तो फीडबैक देना ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब भी करें।